नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abaru yako jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. और by the way, this is a message for all our viewers. अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें. Thank you very much. It's your support which keeps us going. So Pradeep ji, great news. Modi ji has already worked out with Nirmala Sitharaman ji that more GST cuts are coming. Yes, more GST cuts are coming, and Prime Minister Modi has portrayed that how the people of India has benefited, and definitely it's a landmark decision where the poor, the middle class is concerned, where they've got huge tax benefits. ये शायद एक revolution in realistic terms when he says this is a monumental decision, first and best decision after independence के बाद कोई decision ऐसा हो गया होगा तो this GST reforms has been the greatest decision and is calculated and shown to the people of India कि आपको किस प्रकार से बचत हो रहा है, how the बचत योजना से आपको कैसे लाभ पहुंच रहा है, how we have reduced tax to such extent that everybody finds everything affordable comfortably. But the fact remains that the Amazon sale, if that is anything to go by, they have never sold like this before. Everybody is selling, sir. Everybody is going crazy. Everybody is selling. अभी 18% से अगर 5% के आसपास आ जाता है तो it's time to rejoice. Yeah. In fact, the best time for festivities. जब he said Diwali gift, I think this is the Diwali gift. And the other Diwali gift, by the way, is that Chief Minister Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra, has just announced कि दिवाली के पहले पहले सभी फार्मर्स को फ्लड रिलीफ मिल जाएगा, हर एक के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और तीसरी चीज जो है, which is something which I would like to announce or say, I'm sure they must have read it already in front of our guests. We have a couple of very, very important guests indeed. Can we go straight across to them, please? Thank you. What happened? Is there a problem with our guests? Yes, we got all the three guests. Right. That is not the top band. We are not discussing Mr. Wankhede. Can we please take that off, please? Thank you very much. Will you take that top band off, please? We are not discussing Mr. Wankhede. Is somebody hearing me or not? Can you take that header off? Please. What is the matter with you guys? What is the matter with you? Right, let's go back to our guests. Let's go. Thank you. Can we go to our guest now? Thank you. जी समीर वाकर साहब नमस्कार. Thank you very much for joining us, sir. समीर वाकर साहब, आपका वीडियो विजिबल नहीं है. Video is not visible. Something is going wrong everywhere. Can we please correct that? वीडियो जरा विजिबल कीजिए, प्लीज. Anyway, निजाम साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. और निजाम साहब जो हैं वो माशाल्लाह Bakri ji is भाई back. बागरे जी इज बैक एंड राकेश प्रजापति साहब कैन आल्सो बी सीन. प्रजापति साहब नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार. जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद सर. आज नंबियार साहब बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर. आवी निजाम साहब चालू कर दिया आपने प्रोग्राम से आगे बढ़ने दो. Are we visible now, sir? मैं नंबियार साहब हमेशा ही स्मार्ट लगते हैं, सर. Are we visible now, sir? समीर बागरे साहब. यस यस. Wonderful. Now, छोटी सी एक चीज़ है, सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि the DRDO tested the new Agni long-range missile yesterday, fired from a rail platform. उसका रेंज जो है वो 2000 से 2500 किलोमीटर है, सर. It is indigenously developed by our own Defense Research Development Organization, यानी DRDO, which used to be headed by Dr. APJ Abdul Kalam. Successful test of the new Agni missile, which is absolutely fantastic. और दूसरी चीज़ क्या है, राकेश प्रजापति साहब, मोदी साहब की तरफ से इंडिकेशन आया है कि GST और भी कटने वाला है. राकेश प्रजापति साहब, तो इससे तो मुझे लगता है बहुत लोगों को काफ़ी फायदा होगा. ग्राहकों को तो, आम ग्राहकों को तो बहुत फायदा होगा सर, अगर और भी टैक्स कम हो जाता है, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स पे. प्रजापति साहब.
राजीव जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आखिर ये जब 2017 में जीएसटी लेकर के आए थे, तो देश का कौन सा नागरिक चाहता था कि जीएसटी लगे। यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग भी नहीं चाहता था जीएसटी लगे। ये हर चीज में ये कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन प्रोडक्ट वन नेशन, और बहुत सारी चीजों पर ये करते हैं कि वन चीजें होनी चाहिए। लेकिन उस समय भी व्यापारी वर्ग ने भी पूछा, आम नागरिकों ने भी पूछा कि आखिर वन नेशन वन टैक्स क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों जीएसटी 5%, 12%, 18%, 28%, अरे कितने स्लैब बना करके रख दिए। और कंफ्यूज था आदमी कि हम कौन सी चीज 5% में, कौन सी 12 में, कौन सी 28 में, कौन सी 18 में, यही नहीं पता चल रहा था। यहाँ तक कि राजीव जी और प्रदीप जी, बड़ा जी। दुख हो रहा है। इस कितनी दूरदर्शी सरकार है ये, कितनी इनकी दूरदर्शिता है, ये बात सही दर्शाती है कि इनकी दूरदर्शिता बिल्कुल जीरो है। लोगों ने जो चीजें 5% जीएसटी वाली थी उन पर 28% जीएसटी उठाई है, यानी कि 23% मुनाफा कमाया। 23%। सोचिए गरीब लोगों की गाड़ी कमाई किस तरीके से इन्होंने फिर वही बात हो गई ना प्रदीप जी, कि जिन चीजों पर 5% जीएसटी पर काम चल सकता था उन पर 28% जीएसटी क्यों ली गई। अर्थात 23% का मुनाफा क्यों कमाया गया आम नागरिक पर। ये बोझ पड़ा था तो किस पर पड़ा था, ये बोझ आम नागरिक पर ही तो पड़ा था, आम जनता पर ही तो पड़ा था। आम जनता ही तो त्रस्त हुई थी, आम जनता से ही तो लुटाई की गई थी। और फिर बैक टू पवेलियन, किसान बिल पर बैक टू पवेलियन, एनआरसी पर बैक टू पवेलियन, हर चीज पर बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। और तब तक क्या होता, वही होता है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो जब तक जो है आम नागरिक तो बहुत परेशान हो जाता है। और राजीव जी, बड़ा दुख की बात यह है कि इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जाकी ना फटी बीमारी वो का जाने पीर भराई। ये लोग संवेदनहीन लोग हैं, इनके अंदर कोई संवेदना नाम की चीज नहीं है। प्रजापति साहब, आज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में योगी आदित्यनाथ जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स का बहुत तारीफ कर दिया। बोले यूपी के लोगों को जहां सबसे ज्यादा फायदा इस जीएसटी रिफॉर्म से आने वाले हैं। उन्होंने गिनाया, मोदी साहब ने जो कहा कि 1,000 रुपए का शर्ट पहले 117 रुपया टैक्स होता था 2014 से पहले, 2017 में 50 हुआ, अब 35 रुपीज टैक्स। यानी इतना जबरदस्त फायदा, करीबन 100% फायदा जिस प्रकार से दिख रहे टैक्स रिफॉर्म्स में। तो क्या ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अलग अलग चीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, एक जोश पकड़ के क्या उत्तर प्रदेश में व्यवसाय, बिजनेस, इकोनॉमिक्स बूम होने वाला है? ऐसे योगी जी का संदेश जो पूरे देश को दिया है वहां से। प्रजापति साहब जी, हवाई बातें करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी कह लीजिए। और अभी वही बात हो गई ना, अभी आप कह रहे थे कि 2017 के बाद उनकी सरकार आई है, 2017 से लेकर के 25 आ गई, यानी 8 साल हो गए। और 8 ही साल जीएसटी पर हो गए, क्योंकि 2017 में जीएसटी आई। अभी आप ये कह रहे हैं कि जो शर्ट 1,000 रुपए की होती थी, अब उस पर 135 रुपये टैक्स बढ़ जाएंगे। आपकी बात ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ, योगी जी की बात ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हम कब कह रहे हैं सही नहीं कहा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन 8 सालों में ये 135 रुपए की चोरी कौन कर रहा था, 135 रुपए की डकैती कौन डलवा रहा था, ये लूट कौन कर रहा था। आम जनता की गाड़ी कमाई के 135 रुपए क्यों वसूले जा रहे थे। जब ये पैसे बच सकते थे तो 2017 में क्यों नहीं बचाए गए। 2017 से लेकर के 8 साल तक जनता की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई को लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी और मोदी जी ने किया है, जिसकी सजा
ईश्वर देगा, भगवान देगा, और अभी नहीं देगा तो 2-4 साल में देगा। 2024 में रिजल्ट मिल ही गया था और पूरा रिजल्ट 2027 में आएगा। जी। क्यों? क्योंकि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। प्रदीप जी, राजीव जी, क्या इस समय रेट चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल का? आप याद करिए, जब 2014 में यूपीए की सरकार होती थी, लगभग उस समय 136 से 132 $152 सर, 152 भी जी। 152 भी चला गया था। $152 पर बैरल, यस $152 प्रति बैरल था। जी। $152 प्रति बैरल था। उस समय पेट्रोल डीजल 50 रुपए और 40 रुपए मिलता था। 55 या 45 मान लीजिए, 55 या 45 मिलता था। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 76 या 78 का रेट चल रहा है, मुझे जहां तक अंदाजा है, या जी। एक ऊपर हो सकता है। 76 या 77 78 डॉलर प्रति बैरल है। इसका मतलब तो ये कहिए ना, ठीक हाफ है, ठीक हाफ 50% है। तो भैया पेट्रोल डीजल के रेट ठीक 50% हो जाने चाहिए। 55 वाला पेट्रोल जो है 27-28 में मिल जाना चाहिए। 45 रुपए वाला डीजल जो है और 22-23 रुपए मिल जाना चाहिए। इसका मतलब ये सरकार पूरी तरीके से लोगों की गाड़ी कमाई को पेट्रोल और डीजल इस तरीके से, आखिर पेट्रोल डीजल को भैया जीएसटी में आप क्यों नहीं रखते? वाह भाई वाह, जहां आपका फायदा है वहां आप जीएसटी लगा दोगे, जहां आपका दूसरी तरीके से फायदा है उस पर जीएसटी नहीं लगाओगे। यानी कि इनका तो एक ही धंधा है, कैसे भी लुटाई होनी चाहिए। लुटाई करने में ये माहिर है। ये क्या कहूं मैं कि कोरोना काल में कफन तक पे चोरी, और चोर तो है ही है, कफन चोर भी लेकिन है। सर अभी तो जीएसटी कम कर दिया है ना, और अभी और कम कर रहे हैं। उससे ये कहा जा रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छा मैसेज गया है और लोग ज्यादा काम करेंगे, ये कहा जा रहा है। चलिए पिछले 8 साल, राजीव जी बोलिए सर। राजीव जी, चिंता ना करिए, चिंता ना करिए। जिस तरीके से 2024 में सारे लोगों को पता चल गया था ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अभी राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी ने बिहार से पूरे देश में संदेश दे दिया था, और अमित शाह जी बिहार में जाकर के लोगों से पूछ रहे थे, पता है आपको राहुल गांधी क्यों आए थे? तो उनके ही लोगों ने कह दिया था, इसलिए आए थे कि भाजपा के लोग वोट चोर हैं, गद्दी छोड़ दो। उनके ही लोग कह रहे थे। वहां पर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, वहां कोई समाजवादी का कार्यकर्ता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से राजीव जी पूरे देश के अंदर लोगों को पता चल चुका है कि इन्होंने 8-9 सालों से जमकर लुटाई की है, जमकर लोगों को ठगा है, जम के लोगों के खून पसीने की राइट, सो कमाई लेट मी गो टू अगर ये करना है, मैं कह रहा हूँ, अगर इन्हें ये करना है तो एक काम करें, खत्म कर दे और पेट्रोल डीजल पर जितना भी टैक्स लेते हैं वो भी खत्म कर दे, तब जाने इन्हें। लेट्स गो टू निजाम साहब। निजाम साहब, दो चीजें हैं। नंबर एक तो जो वोट चोरी की बात करी अभी भी राकेश प्रजापति जी ने, और दूसरी चीज क्या है, एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है हर जगह पे ऑफ राहुल गांधी साहब इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिगो की फ्लाइट है, उसमें इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं राहुल गांधी साहब। और मैंने ये भी सुना है कि जहां भी जाते हैं ज्यादातर इकोनॉमी क्लास में ही जाते हैं, मतलब वो प्राइवेट प्लेन नहीं लेते ज़्यादातर, वो ज़्यादातर बिजनेस क्लास वगैरह में नहीं जाते, लोगों के बीच में बैठते हैं। और तो और छोड़िए, मैंने ये भी देखा कि वो अपनी सीट से उठ करके लोगों से बात करने को आए, जितने भी लोग पीछे वगैरह बैठे थे सबसे उन्होंने बातचीत करी। कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में निजाम साहब? सर ऐसा है कि राहुल गांधी बहुत शिक्षित आदमी है और ये पहली बार नहीं हुआ है, दर्जनों बार उन्होंने फ्लाई किया है और दर्जनों बार लोगों से मिलते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई भी उनसे मिल सकता है और वो खुद बात करते हैं। वो कभी भी आप उनको बिजनेस क्लास में नहीं देखे होंगे। वो जब भी जाते हैं, जब उनको एसपीजी था तब भी उनकी कोशिश होती थी कि वो आम जनता के बीच जुड़े रहें। अभी तो प्रधानमंत्री जी डर के मारे उनकी एसपीजी निकाल चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है राहुल गांधी देश के बिल्कुल आसान तरीन लीडरों में से एक हैं, जो किसी को भी मिल सकते हैं, किसी के सवालों का जवाब दे सकते हैं, किसी का भी आंसू पोंछने के लिए उसके दरवाजे तक वो जाते हैं। उन्हें इस बात पर कोई, आप घटना देख लीजिए, बिहार में मांझी का घर, दशरथ मांझी के घर जाना, उसका घर बनाना, आपको रायबरेली के वो हमारे मोची जिसका जूता, उन्होंने एक बार उनके जूते को दुकान पे गए थे, उसका शोरूम बनाना, जितनी मतलब इस तरह की छोटी चीजें हैं, उन्होंने कभी इससे परहेज नहीं किया।
और उनको हर चीज का शौक है कि वो जनरली देखें कि मेरे देश की जो जनता है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उसका जीवन यापन जो है उसमें वो किस तरह से जी रहा है, उसके बीच राहुल गांधी खुद जाते हैं और उसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी वो किसी की बात करते हैं, आपको याद होगा कुलियों का विषय था तो दिल्ली के उस पर गए, गैरेज मैकेनिक का विषय था तो करोल बाग दिल्ली गए। आपने मतलब जितने भी विषय आते हैं इस तरह से जो सामाजिक स्तर पर जुड़े हैं, उस सब विषय में राहुल गांधी हमेशा जाते हैं। वो कोई दिखावा नहीं करते कि हम जो है इतने निजाम जी, लीडर हैं। गब्बर सिंह टैक्स, निजामुद्दीन साहब, गब्बर सिंह जी। टैक्स राहुल गांधी जी बार बार चिल्लाता रहा, हर सड़क पर चिल्लाता रहा, हर मंच पर चिल्लाता रहा, मगर आज मोदी जी खुद क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे कि 1000 रुपया के टी शर्ट में 117 टैक्स था कांग्रेस के राज में, हमारे राज में 50 हो गया, 35 रुपीज टैक्स है। जो क्लेम कर रहे कि 35 रुपीज, 117 से 35 रुपीज तक आ गए। क्या ये गब्बर सिंह टैक्स का चिल्लाने से है या मोदी जी खुद जान के जो दिवाली गिफ्ट कह रहे कि स्वतंत्र भारत का सबसे ऐतिहासिक निर्णय है? किस प्रकार से देखते हो आप? ऐसा है कि एक गिरधारी लाल जी हैं जिन्होंने टैक्स लगाया और एक शक्तिमान है जिन्होंने टैक्स खत्म कर दिया, कम कर दिया यानी। तो किसी ने उनको पूछा कि भाई ये गिरधारी लाल और ये जो टैक्स वाले हैं ये लगाने वाले कौन हैं? तो बोले दोनों एक ही हैं। अब आप सोचिए कि 10 बरस में जीएसटी की डकैती करने वाला भी माननीय प्रधानमंत्री है और 10 साल में उस टैक्स को कम करने वाला भी प्रधानमंत्री है। या तो वो बेईमान था जिसने लगाया या ये बेईमान है जिन्होंने घटाया। भाई ये जो टैक्स का खेल है उनके मित्रों के एडजस्टमेंट के हिसाब से होता है। अभी आपको एक घटना बताता हूं जिसमें से 4-5 लोग हैं, हो सकता है किसको बीपी की बीमारी अगर किसी को या घर में हो तो टेल्मा नाम की एक दवा आती है सर, आज ही हमने इसका कंप्लेन करके लिया। टेल्मा 70 रुपए की मिलती थी और टैक्स हटाने के बाद उसका जब कम कर दिया 117 रुपए की हो गई। ऐसे जो अभी कपड़े पे आप बात कर रहे थे उसका जो टैक्स पहले 28% था उसको हटा के 12 कर दिया, लेकिन उसका रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया आपको पता है नंबियार जी? जो रॉ मटेरियल है उस पर भरपूर टैक्स डाल दिया। जितनी भी चीजें रॉ मटेरियल में आप अभी सर्च कर लीजिए, ये मेरी बात तो विश्वास मत करिए, मैं तो कांग्रेस के आदमी हूं, बोलूंगा ही, राहुल भक्त हूं, अंधभक्त हूं नहीं कि जो भी कह देगा मान लूंगा। अंधभक्तों से चेक करने के लिए आप अभी सर्च करिए कि रॉ मटेरियल पर उन्होंने पहले से 2 गुना ज्यादा टैक्स है। तो जो चीज आप सस्ता करने की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट में या तो महंगी हो जाएगी या उसी के आसपास रहेगी। अब आप 117 रुपए की कोई चीज है जिसको अभी वो टैक्सेस की बात कर रहे हैं, आप उसका रॉ मटेरियल देखिए, यान पर कितना बढ़ा दिया, जो नई शर्टें बनाएंगे उस पर कितना पैसा एक्सेस आएगा। ये बेवकूफ बनाने का धंधा मोदी जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये दिखावा करना। अच्छा साहब, आप उत्सव किस बात का मनाएंगे? टैक्स आपने लगाया, लूटा आपने, खजाने में गरीबों का पैसा आपने लिया, सरकार के माध्यम से लिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप डकैती कर रहे थे, लेकिन सरकार के माध्यम से आपने तिजोरी भरी, इससे आप तो इनकार नहीं कर सकते। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 10 वर्षों में जो मैंने टैक्स लगाया वो मैंने नहीं लगाया, तो नेहरू जी आए थे लगा के चले गए थे, जिनका इनको पुराने दर्द रहता है। तो ये सब लोगों को कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आप उनको इसमें आज एक आध किसी को बैठाना चाहिए था या किसी इकोनॉमिस्ट को आपको बैठाना चाहिए था। साहब है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बताएंगे। तो आप उससे पूछिए कि ये जो मैं कह रहा हूं कि रॉ मटेरियल्स में जिस तरह से पैसे उन्होंने जीएसटी में बढ़ाए हैं, क्या वो सत्य है कि नहीं है? और अभी प्रजापति जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि भाई अगर आपको दर्द है और आप चाहते हैं कि आप जो है कांग्रेस के शासन में लूटा गया था और इनके राज्य में नहीं लूटा गया, तो अभी इनके पास हाथ में टैक्सेस कम करने की सारे सरकारें इनके 14 से 15 राज्यों में है ना। जो राज्य सरकार की टैक्सें हैं डीजल पेट्रोल पे कम कर दें या उसको जीएसटी के दायरे में ले आ दें। सर ये सारे प्लान्स जो हो रहे हैं, ये राहुल गांधी का डर। मोदी जी को रात को नींद नहीं आ रही सर, अब उनको दवा लेनी है, वो दवा भी महंगी हो गई। तो इसलिए राहुल गांधी का जो डर है, अभी तो सिर्फ एक झटका सर, अभी तो आप पिछले 2 सालों में राहुल गांधी ने जितनी बात कही, चाहे वो जीएसटी की बात रही हो, चाहे वो रिजर्वेशन की बात कही हो, चाहे वो सेंसेक्स की बात की हो, तो जितनी बात राहुल गांधी कहते हैं और राहुल गांधी चैलेंज करते हैं, ये इनको करना ही होगा। वो ऐसे नहीं कहते कि करेंगे, करना ही होगा। तो आज वो कर रहे हैं।
अब ज्ञानेश्वर वाली भी आप देख लीजिए, इलेक्शन वाली भी, आज उनकी हालत ये हो गई है कि अब बचाने के लिए खुद को पकड़वाएंगे, ये खुद जेल जाएंगे ये सब, क्योंकि राहुल गांधी कोई भी बात हवा में नहीं करते, कोई भी बात झूठी नहीं करते, हर बात पब्लिक डोमेन में करते हैं और सारी तैयारी के साथ करते हैं। Right, so मीडिया let me के go सामने to लीडर- let me go to Samir Bakri Sahab. Samir Bakri Sahab, very good news as far as we are concerned. New GST cuts likely, number one. Number two, the village as a unit, there is a new program which is coming in, where there's going to be a cluster of about 8 or 10 villages, and they will be developed on their own and they'll become self-sufficient. उसकी बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत के तहत। और तीसरी चीज, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, absolutely fantastic. DRDO, they have launched it from a new rail platform. Rail platform से launch किया है अग्नि मिसाइल सर। The range is about 2000 to 2500 kilometers. It's a successful test. और उसके अलावा अभी अभी रशिया के साथ more or less करार हो गया है for the manufacture of the Sukhoi 57E here in India near नाशिक के पास। वैसे भी सुखोई की फैक्ट्री है वहीं पर, तो it's the same platform, the airframe etc remains the same, the avionics are different. So great news. GST के बारे में कुछ बोलेंगे सर आप, प्लीज बाकरी साहब। देखिए राजीव जी, पहले तो मैं आपको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। जन्मदिन है, थैंक यू वेरी मच। वेरी हैप्पी बर्थडे। नमस्कार सर, थैंक यू। देखिए मेरे समाजवादी पार्टी के साथी और कांग्रेस पार्टी के साथी, इन्होंने जीएसटी पर जो बात की है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक तो जानकारी का अभाव है, या ये मतलब ऐसा कहना चाहते हैं जनता को बरगलाने के लिए। मैं आपको जीएसटी के बारे में, मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा। देखिए जीएसटी लागू होना चाहिए देश में। 2000 में एक केलकर कमेटी रिपोर्ट बनी थी, और 2000 से लेके जीएसटी कानून को कोई सरकार, ये 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार आई, इन्होंने 10 साल में कोई जीएसटी लगाने का कोई हिम्मत नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया। ये मोदी जी का नेतृत्व है और मोदी जी की नीति है कि हमारा देश जब एक अलग अलग टैक्सों के बीच में जकड़ा था, तो हमारी विकसित भारत हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हर राज्य के टैक्सेस अलग थे। तो 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने हिम्मत दिखा के पूरे देश में जीएसटी लागू किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बार बार बोल रहे हैं कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है या ये टैक्स है, ये इसमें टोटल लाए है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जीएसटी लागू हुआ था तब केंद्र की 17 जो टैक्सेस थे, 13 सेस थे, ये मर्ज किए गए। इसके अलावा स्टेट के वैट जो थे वो मर्ज किए गए, ऑक्ट्राय टैक्स था, एंट्री टैक्स था, तो ऐसे कई टैक्सेस मर्ज करके एक जीएसटी लगाया गया। अगर आप जीएसटी में जो 4 स्लैब थी, 5, 12, 18, 28, तो मैं आपको प्रमाण के साथ बता सकता हूं कि जब ये यूपीए की सरकार थी, जब जीएसटी नहीं था, तो टैक्सेस की जो ये लगती थी धाराएं सब मिला के आप करेंगे तो 44-54% तक था। वो इनडायरेक्ट टैक्स यानी वो प्राइस में अलग अलग स्टेट ऑक्ट्रा एंट्री टैक्स में लगता था, इसलिए समझ में नहीं आता था। इसलिए पहली तो बात यह है कि ये झूठ फैलाना बंद करे। जीएसटी के कारण देश में व्यापार सुलभ हुआ है। आप देखिए हर स्टेट में चेक पोस्ट हुआ करते थे, वो चेक पोस्ट ट्रांसपोर्टर्स को हरास करते थे, बिजनेसमैन को हरास करते थे, और देश का ट्रांसपोर्ट में 30% समय जाता था। मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट व्यापारियों की 30% बढ़ती थी, तो वो पूरा सीमलेस हो गया है। और जीएसटी जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का अकेले का ये नहीं है। आज ये दोनों को पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल है जिसमें हर राज्य के वित्त मंत्री रहते हैं और हर निर्णय पूरे कंसेंसस से लिया जाता है। तो ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स है, आज मुझे बताइए, ऐसा पूरी दुनिया में इतने बड़े पैमाने पे कोई टैक्स नहीं, एक टैक्स नहीं लगाया गया इतने बड़े देश में। और जीएसटी जब लगाया गया तब हमारा 2017 में कलेक्शन 7 लाख करोड़ था, आज वो 22 लाख करोड़ हो गया। तो हमारे व्यापारी, हमारे उद्यमी, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे जो ग्राहक है, इन सबको फायदा पहुंचा है। मैं आपको बताना चाहता था पहले की सीएसटी होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और लोकल वैट होता था, इसका किसी का आपस में सेट ऑफ नहीं होता था। तो जो उपभोक्ताओं को जो कीमत पड़ती थी उससे सबसे ज्यादा भार उपभोक्ताओं पे पड़ता था, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, व्यापारी है, उसको कोई सेट ऑफ ही नहीं मिलता था। तो उसके कारण पूरा टैक्स कस्टमर पे पास ऑन होता था। आज के डेट में जीएसटी का पूरा क्रेडिट व्यापारियों को मिलता है, चाहे आप कोई स्टेट से खरीदे चाहे बाहर से खरीदे, पूरा क्रेडिट आपको मिलता है। तो इसके कारण आप आंकड़े देख लीजिए। मैं कांग्रेस के मेरे वरिष्ठ साथी को रिक्वेस्ट करूंगा
कि आपके आपके महंगाई के आंकड़े और भाजपा मोदी साहब के महंगाई के आंकड़े आपके इसमें डबल डिजिट हुआ करते थे, अभी आप सिंगल डिजिट के नीचे है। बहुत सबसे कम दर पे महंगाई दर है इतने सालों की। दूसरी बात है पेट्रोलियम जो है, आज पेट्रोलियम ये स्टेट सब्जेक्ट है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी लगातार पेट्रोलियम पे टैक्स बढ़ाते जा रही है। इनकी हिमाचल तेलंगाना की पार्टियां सरकारें पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा रही है। तो पेट्रोलियम जब जीएसटी में है ही नहीं, ये कंसेंसस का निर्णय है, चाहे पेट्रोलियम हो चाहे लीकर हो, ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट अपना टैक्स लगा रही है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो रिफॉर्म्स हुए हैं, देखिए पूरी दुनिया में या भारत में जो आजाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म नहीं हुआ, और ये टैक्स रिफॉर्म सिर्फ 10 साल में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने 1961 में इनकम टैक्स एक्ट लाया और 70 साल 60 साल तक इन्होंने कोई उसमें चेंजेस नहीं किए थे। आज मोदी जी ने डायरेक्ट टैक्स कोड बिल लाया है और जीएसटी 2017 में लगा कि आज आपने 8-9 साल में रिफॉर्म भी कर दिए। जो सबसे ज्यादा 12% में जो 99% चीजें थी वो 5% या 0% में आ गई है। बाकरे साहब, बट गब्बर सिंह टैक्स जब कहते हैं राहुल गांधी जी, आंकड़े दिए हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। 8 साल में 128 लाख करोड़ का कलेक्शन हो गया। 8 साल में 128 लाख का करोड़ कलेक्शन हो गया। उसमें से 80 लाख करोड़ गरीबों से लिया है। ये आंकड़ा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। बोले कि 80 लाख करोड़ आपने गरीबों से लिया है, 48 लाख यानी बचा हुआ वो अमीरों के पलड़े में आता है। दैट मीन्स आपका जो पैसा आया है इस देश में वो गरीबों से आपने लिए 80 लाख करोड़। ये आंकड़ा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। सो पीपल पुअर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, दैट इज व्हाट दे से। उनका कांग्रेस का कहना है कि पुअर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, और मोदी साहब रियलाइज हो गए 8 साल के बाद शायद उनका कहना है कि गब्बर सिंह टैक्स चिल्ला रहे थे राहुल गांधी जी, इसलिए। तो हाउ डू यू सी दैट? गरीबों ने ज्यादा टैक्स भरा है बाकरे साहब, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो यू एक्सप्लॉइटेड द पुअर। बेसिक टैक्सेशन स्ट्रक्चर समझिए। राहुल गांधी को शायद उनके जो एडवाइजर्स है योगेंद्र यादव जी या जयराम रमेश, उन्होंने जीएसटी समझाया नहीं है। ये पूरे जीएसटी में सब स्टेट के टैक्सेस मर्ज हुए हैं। तो जो पहले टैक्स जो होता था वो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, केंद्र सरकार अलग से लेती थी, तो ये सब टैक्स मिला के एक साथ हुआ है। तो इसमें कोई गरीब अमीर नहीं, पहले भी पूरे भारत के लोग टैक्स देते थे, आज भी देते हैं। और अगर ये टैक्सेस इतने कलेक्ट हुए हैं तो या क्या केंद्र सरकार ने पूरे टैक्सेस रखे हैं? ये तो टैक्सेस पूरे राज्य सरकारों को शेयर हुए हैं। उसका एक फॉर्मूला है। और 2022 तक आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2017 से लेके 2022 तक जो भी स्टेट के जो बजट में कमी आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका कंपनसेशन दिया है। अगर आपका टैक्स कलेक्शन कम होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका कंपनसेशन दिया है। तो राहुल गांधी को इकोनॉमिक्स ठीक से समझना चाहिए। और ये जो जनता को हर चीज में दिशा भूल करना, मैं तो राहुल गांधी जी के पार्टी के तरफ से कोई भी सामने आए, मैं एक आपको बोलता हूं कि ओपन फोरम में डिस्कस कर ले कि उसमें उस वक्त क्या टैक्सेशन रेट हुआ करता था, अब क्या टैक्सेशन रेट है। देखिए जीएसटी आपको बिल में दिखता है, पहले का जो वैट है, एंट्री टैक्स है, ऑक्ट्रा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज टैक्स था, आपको बिल में नहीं दिखता था, वो इंक्लूसिव था। तो इसका ये मतलब नहीं हो टैक्स नहीं लगता था। तो ये भ्रांति फैलाना बंद करे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। और ये पूरे देश के साथ ये टैक्स शेयर हो रहा है। इतना जो डेवलपमेंट हुआ है, आज गरीबों को गरीब कल्याण का अनाज मिल रहा है, गरीबों को घर मिले हैं, गरीबों को उज्ज्वला योजना मिली है, गरीबों को हर घर नल मिला है, गरीबों को मुद्रा योजना मिली है। तो क्या टैक्स का अच्छे तरीके से यूज नहीं हुआ है? ना, उनका कहना कि गरीबों से ज्यादा वसूला गया है टैक्स, गरीबों से वसूला गया है ज्यादा टैक्स, अमीरों से कम और गरीबों से ज्यादा। मिडिल क्लास एंड पुअर हैज गिवन मोर टैक्स। बाकरे साहब, कांग्रेस का कहना वो है कि गरीब और मिडिल क्लास कंट्रीब्यूशन हैज बीन मोर। दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैक्सेशन स्ट्रक्चर। प्रदीप जी, मैं आपको वही बता रहा हूं कि दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैक्सेशन स्ट्रक्चर। अगर कांग्रेस पार्टी में कोई इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से है या कोई टैक्सेशन समझता है, वो बता सकता है कि पहले जो टैक्सेस थे वो लगते थे लेकिन दिखते नहीं थे। तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। आज जीएसटी आपको बिल में दिखता है, इसके आपको लग रहा है, लेकिन पहले वैट, ऑक्ट्रा, एंट्री टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये सब लगता था, आपको दिखता नहीं था, इसलिए मतलब नहीं लगता था। जनता तब भी टैक्स देती थी, जनता आज भी दे रही है। फर्क इतना है, पहले का जो टैक्स कलेक्शन भ्रष्टाचार में जाता था, पहले का टैक्स कलेक्शन का बेनिफिट गवर्नमेंट तक सीमित रहता था, आज जनता और गरीबों का हित हो रहा है। और इसलिए आज भारत विकसित भारत हो रहा है। अर्थव्यवस्था 11वीं से आज चौथी क्यों आई है?
एक जनता का पैसा जनता को समर्पण किया है मोदी जी ने। और जी। जब पता चला है कि अपने इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा हो गया, 2014 में बजट का साइज 15 लाख करोड़ था, आज 60 लाख करोड़ हो चुका है, तो 4 गुना अगर बजट का साइज बढ़ा है, ना इनकम टैक्स बढ़ा है, ना पर्सनल इनकम टैक्स घटा है, जीएसटी घटा है, तो ये सब करने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो वी ट्रस्ट पीपल, हम लोग लोगों पे विश्वास करते हैं, इसलिए आज हम लोग बेनिफिट लोगों को ही पास करना चाहते हैं। तो दिस इज द प्योर मोदी इकोनॉमिक्स, और इसके कारण भारत देश विकसित हो रहा है। Now over here there is one small little problem, और वो छोटी सी प्रॉब्लम सर ये है कि ज़्यादा महाराष्ट्र का प्रश्न है, अगर सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात करें, और वही प्रॉब्लम बाय द वे यूपी में भी आ रही है, पंजाब में भी आ रही है, कि जो किसान बाढ़ग्रस्त हैं इस वक्त, बाढ़ से जो पीड़ित हैं इस वक्त, फडणवीस साहब ने तो अनाउंस किया कि दिवाली के पहले पहले उनको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सर जो सेंटर से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से जो एक लेटर आनी चाहिए, जो एक डायरेक्टिव आना चाहिए अमित शाह साहब की जो मिनिस्ट्री है वहां से कोऑपरेटिव बैंक्स को, कि ये जो पैसा आएगा इसको आप टच नहीं करेंगे, सर बहुत जरूरी है ये। बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, आई डिस्कस दिस यस्टरडे ऑल्सो, बाढ़ग्रस्त जो किसान हैं उनके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, और जो पुराना उनका इंटरेस्ट ड्यू है वो कोऑपरेटिव बैंक्स पहले उसको अपने खाते में ले लेंगे। सर यू हैव टू डू समथिंग हियर, a proper direction has to be sent that this amount is only for flood relief, you will not touch it. बाकरे साहब, देखिए राजीव जी, आई एग्री एंटायरली विथ योर व्यू पॉइंट। और आज माननीय देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनके साथ एकनाथ शिंदे जी और अजित दादा पवार, ये दोनों और सरकार के कई मंत्री, देखिए अभूतपूर्व बाढ़ आई है मराठवाड़ा में, और हमारे किसान भाई इस वक्त तकलीफ में है। और देवेंद्र जी ने इमीडिएटली राहत कार्य शुरू किया था। हमारे सरकार के अधिकारी है, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सब लोग जमीन पे। पहला काम है कि उनको राहत कार्य पहुंचाना है, उनको मदद पहुंचाना है। और देवेंद्र फडणवीस साहब ने पहले इमीडिएटली जो मदद अनाउंस की है, और उन्होंने कहा है कि ये हम लोग कोई निकष नहीं रखते हुए ये मदद उन तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, अगर जो भी मदद लगेगी हम पूरी करने को तैयार है। और सर वी आर अ सेंसिटिव पार्टी, हम जानते हैं कि अगर मतलब हमारे किसान के खाते में पैसा जाता है और अगर कोई बैंक उसका लोन का किस्त लेती है, सो दिस विल डेफिनेटली नॉट हैपन। स्टेट गवर्नमेंट विल इशू द डायरेक्शंस, सेंट्रल गवर्नमेंट विल इशू द डायरेक्शंस। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे जो किसान है, जो हमारे अन्नदाता है, जिनके भरोसे आज सर मैं क्योंकि इसको जीना एक्सपीरियंस जीते, कर चुका हूं, दे विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। और आप देवेंद्र जी के स्टेटमेंट का कन्विक्शन भी मैंने देखा है देखिए, सर। ही हैज ऑलरेडी सेड दैट एंड ही इज ऑन Before द Diwali. जॉब, It's ही not इज अ enough. वेरी सीरियस पर्सन इन सबका एवरी जी, एस्पेक्ट। और कांग्रेस- किसानों के बारे में तो भारतीय जनता कांग्रेस- पार्टी सबसे ज्यादा सबकाल जी ने कहा कि 50,000 पर हेक्टर देना चाहिए, 50,000 पर हेक्टर इमीडिएट रिलीफ देना चाहिए, और जो लैंड ध्वस्त हो गया, घर उजाड़ा गया, 5 लाख आपको देना पड़ेगा। ये जो डिमांड है लोगों का, और जिस प्रकार से इफेक्ट हुए पूरे महाराष्ट्र के 17 डिस्ट्रिक्ट, बाकरे साहब, द डैमेज इज एक्सटेंसिव, जबरदस्त डैमेज हो गया है। लोगों को खाने का वांदे है, वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसी अवस्था है। तो देश से सबकाल जी, कांग्रेस का कहना है कि आपका जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, 50,000 पर हेक्टर आपको इमीडिएटली रिलीज करना पड़ेगा, और वो शायद आपके फंड्स में प्रॉब्लम होने वाला है। यू डोंट हैव दैट फंड्स। साहब बाकरे साहब, देखिए प्रदीप जी, लेट मी से दैट महाराष्ट्र इज अ वेरी फिजिकली डिसिप्लिन स्टेट। आज एफआरबीएम के एक्ट में जो 25% तक कर्जा ले सकते थे, हमने सिर्फ 18% लिया है। आज हमारे महाराष्ट्र की इन्वेस्टमेंट्स, और आपको रोज देख ही रहे कि क्या क्या हो रहा है। मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूँ, देवेंद्र जी ने वो इनिशियल राहत दी है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द मतलब हमारी जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन है, इट हैज जस्ट बिगन। इमीडिएट टास्क क्या है कि हमारे फार्मर्स और हमारी जो उनके परिवार है, उनको खतरे से बाहर निकालना है। उनको जो भी मदद चाहिए, चाहे वो कितनी भी लगे। आज हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम केंद्र से भी मदद लाएंगे, हम राज्य सरकार से भी लाएंगे, हम लोकल लेवल पे भी करेंगे। हमारी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता सब जगह लगे हुए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। मैं आपके चैनल के थ्रू जो पीड़ित जनता है उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि देवेंद्र जी की सरकार ये जनता और गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। जो राहत है वो जरूर वहां तक पहुंचेगी, और जितनी भी राहत चाहिए वो पहुंचाएंगे। फाइनेंशियल इसका मैनेजमेंट हम जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब क्या है कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ इसको, ये हम लोगों ने पहले देखा है। आ रहा हूँ निजाम साहब, आपके पास आ रहा हूँ, डोंट वरी, आई एम कमिंग टू यू, 1 सेकंड। साहब अभी उन्होंने, समीर जी ने ये कहा
मैं आ रहा हूं सर आपके पास, एक नहीं, एक ही मिनट, खाली एक बोलिए शब्द बोलिए बस। बोलिए बोलिए। अभी उन्होंने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा कि अभूतपूर्व बाढ़, अभूतपूर्व नहीं हो सकती बाढ़ कभी, बाढ़ भयंकर होती है या विनाशकारी होती है। चलिए, तो पहली बात तो उनको अपना शब्द वापस लेना चाहिए। कोई बात। दूसरी चीज ये दावा करना कि मैं किसानों के हितैषी हूं, सबसे ज्यादा किसान इनके राज्य में आत्महत्या किया और सबसे ज्यादा किसानों को आपके पास जब आएंगे तो आप ये बोल दीजिएगा ना सर, मरने के लिए छोड़ दिया। सर कहना है आस्क हिम। सर मैं भूल जाऊंगा मेरा सवाल जो है। समीर बागरे साहब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राकेश प्रजापति, आप भी जरा सुने। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 70,000 करोड़ के करीब, एक्चुअली 71,000 करोड़ के करीब रिलीज किया गया था टू वेव ऑफ फार्म लोन्स। फार्म लोन्स जो थे, ये कहा गया था कि 72,000 के 71,000 करोड़ पी चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने रिलीज किया था। दैट वाज ड्यूरिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइम। सर वो सारा पैसा जो है, द बैंक्स यूज्ड इट टू बैलेंस देयर बुक्स, नथिंग रीच द फार्मर्स। फार्मर्स को कुछ नहीं पहुंचा। हमारे जो यहाँ पे एनसीपी के हमारे जितने भी दिग्गज हैं, आप जानते हैं कौन लोग हैं वो, हु ओन दीज बैंक्स, उन सब की जेबें भर गई। वो सब लोग तृप्त हो गए सर, फर्स्ट क्लास हो गए, फार्मर्स तक कुछ पहुंचा नहीं। तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं जान करके आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। बागरे साहब बोलिए। के साथ है और डबल इंजन, अभी इन्होंने कहा, उनको बताइए कि ट्रिपल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में, और वही लोग हैं जिन्होंने लूटा, जिन्होंने लूटा, जिसको मैं जान के पूछ रहा हूं सर, मैं पूछ रहा हूं, वही तभी मैं पूछ रहा हूं। मैं निजाम साहब का फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं, क्योंकि आपने जो सवाल अभी पूछा वो डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार को एक्सपोज कर रहा है। इसलिए देखिए निजाम साहब, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में वरिष्ठ है आप, मैं नहीं बोलता हूं, आप रिस्पेक्टेड है। देखिए आपने राजीव जी जो सवाल पूछा, ये कांग्रेस का यही इकोनॉमिक्स है। आज ये जो इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स किए थे, आज 2022 तक हमारी सरकार ने ऑयल बॉन्ड के पैसे भरे हैं। अभी ड्यू होने वाला 2027 में पोस्टपोन करना, चिदम्बरम साहब का जो इकोनॉमिक्स है वो यही था कि आज का प्रॉब्लम पोस्टपोन करो और दूसरे पे डाल दो। सर 2027 में दोबारा ड्यू होने वाला है, ना इसका कभी सॉल्यूशन निकाला। इसलिए सर ये आज वो 70,000 करोड़ का जो फार्म वेवर था, उससे कई गुना ज्यादा आज भारत सरकार ने किसानों को मदद पहुंचाए। हर साल गरीबों को अलग अलग स्कीम्स में, किसान भी गरीब कल्याण में है, हर चीज में किसान का है। आज किसान को एक फसल बीमा मिल रहा है, किसानों को खाद की सपोर्ट मिल रहा है। तो देखिए निजाम साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपके राज में 70 साल 60 साल जो आपने राज किया, उसमें किसानों की स्थिति वैसी ही थी। इंदिरा गांधी भी बोलती थी गरीबी हटाओ, और राजीव गांधी भी बोलते थे गरीबी हटाओ, और राहुल गांधी भी बोल रहे। तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज यू फॉलोड। भारतीय जनता पार्टी के इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी पॉवर्टी में ऑलरेडी 30 करोड़ लोग बाहर निकल चुके हैं, और कर्जा जो है सर किसानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हर स्कीम है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार 12,000 रुपए मिल ही रहे, हर चीज का पहुंचा रहा है सर। भागरे साहब एक चीज है, कल yesterday एड्रेस नहीं की कांग्रेस पार्टी ने, इसके वजह से प्रॉब्लम्स हो। सर yesterday we had my very old senior journalist from शोलापुर। वो शोलापुर में बहुत सालों से, उनका नाम है शाहजहां अथर, हमारे साथ बहुत पुराने हैं। वो 2000 से ही हमारे साथ थे, सारा में भी, पहले मुंबई में भी। उन्होंने ये बताया कि 150 साल में इतनी जबरदस्त बारिश नहीं आई शोलापुर में, 150 साल में। दिस इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन द लास्ट 150 years इन शोलापुर। एनीवे दैट्स अ सेपरेट इशू। क्या है प्रजापति साहब, उत्तर प्रदेश में भी जो जबरदस्त बारिश हुई है, और अभी जो है वो फ्लड वाटर्स रिसीड करने शुरू हुए हैं, जो पानी अब पीछे जाना शुरू हुआ है, और पीछे पानी जो पीछे गया उसने रेत छोड़ दी है वहां पे, रेत, जिसकी वजह से क्या हुआ है, पूरे खेत पूरे खत्म हो गए हैं। तो इस बार खरीफ क्रॉप जो होने वाली है उसका क्या हाल होने वाला है सर? जो चावल की खेती है, गन्ने की खेती है, दाल की खेती है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, उसका क्या हाल होने वाला है? कटाई में तो मुझे नहीं लगता कुछ बचेगा इस बार। प्रजापति साहब। राजीव जी, पंजाब और उत्तर प्रदेश जी, पंजाब की ज्यादा स्थिति खराब है, उत्तर प्रदेश तो थोड़ा सही है, करेक्ट। लेकिन पंजाब की सबसे ज्यादा खराब है। अगर देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्थिति पंजाब की खराब है। और जो आप बता रहे हैं कि फसल जो आगे फसल होनी है, धान की फसल तो पूरी तरीके से पंजाब में तो बर्बाद हो ही चुकी है, बर्बाद हो गई। और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 30 से 40% धान की फसल खराब हो गई।
इससे अगली जो फसल अब बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आलू की फसल है, उत्तर प्रदेश की मेन फसल है पंजाब की, और वो शुरू होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि 8 से 10 दिन बाद आलू रखना शुरू होगा। वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। और सब्जियों में आलू राजा कहा जाता है। आलू सस्ता होता है तो सभी सब्जियां सस्ती होती हैं। आलू महंगा होते ही सारी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। और भाई देखिए, जिस तरीके से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जमीन तो बढ़ नहीं रही है, खेती की जमीन जो है वो तो लगातार कम होती जा रही है। तो ये समस्याएं देश के अंदर आ सकती हैं अगर इसकी तरफ सरकार ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उत्तर हालांकि प्रदेश में क्या हो रहा है सरकार सर, रिलीफ मिल रहा है कि नहीं? किसानों को रिलीफ मिलना शुरू हुआ कि नहीं मिला कोई उत्तर प्रदेश में? रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। राजीव जी देखिए, राजीव जी वही बात है। मैं कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा था। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। आई आप एम विद योर ब्लेसिंग्स, आप सब लोगों की दुआ के साथ आज मैं 105 साल का हो गया हूँ। थैंक यू सर। जी बोलिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था, अभी समीर जी बड़ा राहुल जी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन समीर जी ने खुद ही ये कहा था कि जब हम जीएसटी लेकर आए, ठीक है सुनिएगा समीर मैं जी, सुन रहा आप भैया इकोनॉमिक्स से हैं, इकोनॉमिक्स से, मैं तो इकोनॉमिक्स नहीं, मैं तो थोड़ा सा कम आती है इकोनॉमिक्स। लेकिन आपने आपने खुद कहा कि जब हम जीएसटी लेके आए, उससे पहले जो टैक्स वसूली होती थी वो 7 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक थी। ठीक है ना समीर जी, यही कहा था ना आपने? थोड़ा और गलत जैसे गलत जा रहे हैं प्रजापति जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं। गलत नहीं जा रहा हूँ, मैं गलत नहीं जा रहा मैं हूँ, आपको गलत नहीं बता जा भी रहा चाहता हूँ। हूँ, आप जो कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं बाद में बात करूँ। हाँ, उसके बाद आपने कहा जैसे ही हमने जीएसटी लागू की, वो बढ़ करके 22 लाख करोड़ हो गया। यानी कि आपने बहुत अच्छा किया, टैक्स 15 लाख करोड़ रुपए बचा दिया, तो बढ़ा दिया। बहुत अच्छा किया, बधाई के पात्र हैं आप। 15 लाख करोड़ रुपए आपने टैक्स ज्यादा ले लिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये टैक्स किस पर पड़ा? इस टैक्स से पिसा कौन? इस टैक्स से मरा कौन? इस टैक्स के नीचे दबा कौन? इस टैक्स के नीचे दबा आम आदमी, इसके टैक्स के नीचे दबा आम जनता। ये टैक्स वसूला गया आम जनता से। वो माध्यम दूसरा है, वो माध्यम दूसरा है। माध्यम क्या है कि वो आपने आपने वो टैक्स लिया है, किससे टैक्स लिया है? आप तो यही कहेंगे टैक्स हमने तो दुकानदार से लिया। आप टैक्स तो दुकानदार से लिया, लेकिन वो टैक्स पड़ा किस पे ओवरऑल? इसीलिए इसीलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आपने 120 लाख करोड़ रुपए पिछले 8 सालों में, 15 अट्ठे 120 रुपए है। कोई गलत नहीं कह रहा है राहुल गांधी जी, आपका ही भाषा में कह रहे हैं कि इसीलिए आपने 120 लाख करोड़ पिछले 8 सालों में आम आदमी की जेब से, आम आदमी की पॉकेट से निकालने का काम किया। फिर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ समीर जी, बड़े उस अदब के साथ आप, अगर जीएसटी इतनी अच्छी थी और जीएसटी इतनी आप दूरदर्शिता से लाए, तो आपने 160 कुछ 100 के आसपास अमेंडमेंट किए, 100 के आसपास सुधार किए जीएसटी में। अरे भैया, क्या जरूरत थी आपको फिर जीएसटी ऐसी लाने की जिसमें 100 अमेंडमेंट करने पड़ जाए? एक या दो अमेंडमेंट तो चलता है, ठीक है मानते हैं, एक दो अमेंडमेंट चलता है, लेकिन 100 अमेंडमेंट करने पर चल जाए। हम तो दुकानदार से यही पूछते हैं, बोले समझ में ही नहीं आता है। हर 2-3 महीने बाद भी आप तो शायद सीए का भी काम करते हैं, आप ही बता दीजिए, हर 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो जाता है, नहीं हो जाता? हर 1-2 महीने बाद अमेंडमेंट, कभी ये अमेंडमेंट, कभी ये अमेंडमेंट। अच्छा, और दूसरी बात ये पूछना चाह रहा हूँ समीर जी, क्या क्या बिजली के बिल कम होंगे जीएसटी का? ठीक है, क्या मोबाइल का रिचार्ज कम होगा? क्योंकि आज आवश्यकताओं इन दो चीजों की ज्यादा है। क्या क्या हॉस्पिटल का बिल कम होगा लोगों का? नहीं होगा साहब, नहीं होगा। केवल इसीलिए मैं कहता हूँ, केवल आपकी ये हवाई है और कुछ नहीं है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, वही स्थिति आने वाली है। You know, Tripathi Sahab, Yogi Adityanath ji. क्विक इनका I'll just finish this question, then we'll come back to you. प्रजापति साहब, योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि कोई कास्ट बेस्ड, जाति आधारित कोई भी मोर्चा, कोई भी धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नहीं होगा।
नहीं होगा जाति के आधार पर। एफआईआर में जाति के नाम पर कोई केस जाति का मेंशन नहीं होगा। तो एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी से हटाकर नौकरी देंगे अपने घर वालों हटाकर बाकी कोई नहीं लड़ेगा। आंदोलन की बात कर रहा हूं, आंदोलन। तो प्रजापति साहब, तो क्या आप अखिलेश यादव जी क्यों विरोध कर रहा है उसका? क्यों विरोध क्या? अरे अभी जाति के नाम पर निजामुद्दीन जी को बोलने दो, बिकॉज अखिलेश यादव जी ने उसका विरोध किया है। अगर कोई अच्छा चीज हो रहा है तो प्रजापति साहब उसका विरोध क्यों? क्या जाति आधारित? मैं जवाब हाँ। प्रदीप जी, मैं जवाब प्रदीप जी, ये 2024 में जब हम लोग पीडीए लेकर के आए थे, उस पीडीए का रिजल्ट आपको पता है। ये 400 पार चिल्लाने वाले लोग, 400 पार, और गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया लगातार 400 पार ही दिखा रही थी। आप जैसे लोग क्या दिखा रहे होंगे वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन जो वास्तविकता थी वो कोई भी मीडिया चैनल 400 पार से नीचे नहीं दिखा रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये पीडीए की ताकत थी, ये अखिलेश यादव जी की ताकत थी, ये राहुल गांधी जी की ताकत थी कि इन्हें 2 वैसाखी पर ला करके खड़ा कर दिया, 2 वैसाखी पर। और उस पीडीए के माध्यम से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जातियों को जोड़ने का काम कर रहे थे, छोटी छोटी जातियों को जोड़ने का काम कर रहे थे। उसी के तहत अभी आपने देखा था 25 अगस्त को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रजापति महापुरुष सम्मान सम्मेलन किया गया था। आए दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी अपने पार्टी कार्यालय पर कभी कश्यप समाज का सम्मेलन, कभी मौर्य समाज का सम्मेलन, कभी चौहान समाज का सम्मेलन, कभी किसी का सम्मेलन लगातार कर रहे थे, जिससे कि ये जातीय समाजवादी पार्टी के साथ लगातार मजबूती के साथ खड़ी हो रही थी। इसीलिए डर करके योगी जी डर गए। और मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, अगर इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद किसी में है तो योगी आदित्यनाथ जी में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कई बार इस चीज को कह चुके हैं कि मैं तो गर्व करता हूं कि मैंने क्षत्रिय समाज में जन्म लिया, उसी क्षत्रिय समाज से जन्म लिया जिस क्षत्रिय समाज से प्रभु राम आते हैं। बताइए, एक मुख्यमंत्री ये भाषा अपने लिए तो यूज करता है लेकिन दूसरे के लिए रोक लगाता है। एक बात और कह करके बात खत्म कर दूंगा कि संजय निषाद जी का, इनके ही साथी है समीर जी, पता चल गई नहीं संजय निषाद जी ने क्या किया है? संजय निषाद जी ने कहा है कि मैं योगी जी आपके इस निर्णय के खिलाफ हूं और मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट। और अभी तो ओम प्रकाश राजभर जी को निकल के आ जाने दो स्वस्थ होकर के। ओम प्रकाश राजभर जी फिर से लताड़ेंगे आपको, अनुप्रिया पटेल फिर से करेंगे, जयंत चौधरी फिर से करेंगी, क्योंकि ये सब पार्टियां जाति पर आधारित हैं। But is that legal, by the way? I don't think that's a legal order. You cannot prevent people from gathering together or demonstrating on the basis of their caste. You can't do it. बिल्कुल राजीव जी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आप लगातार हमारे समाज की बात को करते रहते हैं। आगे से ये लोग हम लोगों की बात को नहीं रखने देंगे, ये कह करके आप जिनको आज तक, अब यहाँ पर कहनी चाहिए वो बात मैं फिर से कह देता हूँ, जो विकास जी कहते हैं कि जिन जातियों को 5000 साल तक आपने शिक्षा से महरूम रखा, आपने भूमि से महरूम रखा, अच्छी सुविधाओं से महरूम रखा, उनके लिए आरक्षण की जरूरत थी। और आज भी वो 5000 साल थोड़े बीत गए, अभी कितने, अभी तो केवल 60-70-75 साल 78 साल हो गए, 78 साल हो गए आजादी को, और रिजर्वेशन को तकरीबन कोई 71 साल हुए, 71 ईयर्स। जी 71 साल कहाँ हुए राजीव जी, कहाँ हुए? एससी वाले को हुए ना 71 साल, एससी को, करेक्ट। मंडल कमीशन तो 92 में लागू हुआ है, 94 करेक्ट। ठीक है, मंडल कमीशन तो तब लागू हुआ, पिछड़ों को 31 साल हुए, और पिछड़ों को पूरी मांगे कहाँ हुई है मंडल कमीशन की? जिस दिन 14 की 14 मांगे पूरी हो जाए तब बात है ना। अभी तो मंडल कमीशन की 2 मांगे पूरी हुई है। अगर मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी आपके चैनल के माध्यम से, एक्चुअली एक तो भाजपा के जितने भी ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए, जो कहा जाए वो कम है। पूरी तरीके से पता नहीं क्या कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए।
मैं तो कहता हूं कि अगर वास्तव में प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपने आप को तेली समाज से कहते हैं, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, अगर वास्तव में वो पिछड़े हैं तो मंडल कमीशन की सारी रिपोर्टें लागू कर दें, तब मानूंगा वो पिछड़े समाज से हैं। कर रहे हैं सर, उन्होंने कहा है कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ओबीसी कमीशन बनाई है। आज तक ओबीसी कमीशन भी नहीं थी हिंदुस्तान में, वो मोदी जी ने बनाई है। निजाम साहब की आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, सुनिए ना सर। हाँ बोलिए। अभी महाराष्ट्र में समीर भाई को पता नहीं, पता है कि नहीं जी, माननीय मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण महामंडल बनाया। ब्राह्मण जी, मालूम है कि नहीं? उनको पता कर लीजिए, ब्राह्मणों का महामंडल उन्होंने बनाया। तो जातिवाद कौन फैला रहा है सर? जातिवाद तो यही दोनों फैला रहे हैं ना। माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जो है, अभी 4 दिन पहले एक महामंडल बनाया उन्होंने ब्राह्मणों का। यह भारत के राजनीति की तारीख का 72 दिन है, उन्होंने अभी बनाया है। अभी आप नोटिफिकेशन देख लीजिए महाराष्ट्र का। दूसरी चीज, अभी भाई समीर जी कह रहे थे कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर ऊपर लाए। तो 140 करोड़ के भारत में 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज देकर उनको बेकार कर रहे, और उसमें से 25 करोड़ निकाल के वो घटाए, या वो भी उसी प्लस पॉइंट में? सर, झूठ का आंकड़ा पूरा देश देखता है, और बीजेपी सिवाय झूठ बोलने के। इसीलिए मैं कहता हूं, कभी कभी सुब्रमण्यम स्वामी को पढ़ लीजिए, कभी कभी निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड को पढ़ लीजिए, कभी कभी जो है यशवंत सिन्हा, जो भारत के बड़े काबिल जो मंत्री थे और इन्हीं के पार्टी के थे, कहीं बाहर के नहीं थे। आप ये सारे विद्वानों के विचार पढ़ लें, क्योंकि मैं आज एक स्टेटमेंट देख रहा था एक जर्नलिस्ट का, जिसने एक स्टेटमेंट कोट किया था आपके पुराने मुख्यमंत्री केजरीवाल का। केजरीवाल ने यह कहा था कि ये दोनों जाहिल हैं, पढ़े लिखे गैर जाहिल हैं, और इनको कुछ पता नहीं है। तो हम लोगों को बुरा लगता था कि यार देश के प्रधानमंत्री को ये जो तस्वीर दिख रही है ना स्क्रीन पे, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी है इंडिगो में इकोनॉमी फ्लाइट। बोलिए जी। आगे सर, नहीं, मैं वो याद दिला रहा था कि जो अभी ये कह रहे थे कि बहुत बढ़िया देश का फैसला कर दिया, सब कर दिया, तो आज मैं वो स्टेटमेंट देख रहा था सर। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही, निजाम साहब और प्रजापति साहब, आप दोनों ने फॉर एग्जांपल, हो सकता है जीएसटी को लेकर के बहुत डिफरेंसेस रहे हों। जीएसटी पहली बार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पहली बार इतने बड़े देश में लागू हुआ, ठीक है सर? इतने ज्यादा सर, पूरे बात, अरे सर बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। ये कांग्रेस का फैसला था कि इसको लाना चाहिए। उस वक्त बाकी स्टेट से ऑपोजिशन आई, बीजेपी ने भी अपोज किया, डीएमके ने भी अपोज किया, एडीएमके ने भी अपोज किया, टीएमसी ने भी अपोज किया। लेकिन जब मोदी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। सो एवरीबडी हैड टू गो थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस। लेट्स बी वेरी क्लियर। आप बोल रहे हैं सर 100 अमेंडमेंट हो या 150 अमेंडमेंट हो, सर कहीं पर अगर कोई चीज काम नहीं कर रही, उसको आपको अमेंड करना ही पड़ेगा ना। सो व्हाट? नहीं करें सर, मैं क्या बोलता हूं, आप बताइए ना, अगर देश के हित में अमेंड कीजिए, क्या है उसमें? बोलिए, अब आप बोलिए। सर, बीजेपी को यह मानना पड़ेगा कि यह हर दबाव राहुल गांधी की वजह से है। आपको याद होगा मनरेगा में माननीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहते थे कि यह बर्बाद करने वाला पोस्ट है। उसके बाद ये लेके आए, आपने देखा प्रधानमंत्री नहीं थे ना। प्रधानमंत्री का शब्द है कि उल्टे लटक जाए राहुल गांधी, मैं नहीं करूंगा। सर वो प्रधानमंत्री जी नहीं थे ना उस वक्त। राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री को, अभी हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, हाइड्रोजन, सर एवरीबॉडी लर्न्स। वोट चोरी, अरे यार क्या निजाम साहब, वोट चोरी का हद हो गया। अब हाइड्रोजन बॉम्ब से आप बोलते यूरेनियम बॉम्ब लेके आ रहे, यूरेनियम बॉम्ब, यूरेनियम बॉम्ब। जयराम रमेश, सुनिए ना, जयराम रमेश कह रहा है कि यूरेनियम, अब हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, यूरेनियम बॉम्ब फोड़ने वाले। राहुल गांधी जो कहते हैं नहीं होगा। अब जितने आप बॉम्ब लेके आ रहे हो, आपका वोट शेयर घटता जा रहा है, आप इलेक्शन हारते जा रहे हो, आप इलेक्शन हारते जा रहे हो। ये बीजेपी का कहना है, बीजेपी कह रहे हैं जितने बॉम्ब लाओ आप हारने वाले। ऐसा है, देखिए एक बात समझ लीजिए नामबियार जी, बीजेपी का जो कहना है कि बड़े ईमानदार हैं, सारे करप्ट नेताओं की पार्टी है। नाम गिनती से गिना दूं, कहें तो 25 नाम एक साथ दे दूं, सारे करप्ट नेताओं की, जिनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हैं, फाइल सब पड़ी हुई है, पेंडिंग में रह के वो सरकार में इसलिए बैठे हैं कि वो बेईमानी जो उनके गले में फंदा डलने वाला था उससे बचे रहे।
दूसरी चीज ये कि राहुल गांधी ने जो कहा इलेक्शन कमीशन पर, आज इलेक्शन कमीशन की क्या हालत हो गई है आप खुद देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन अब वो नोटिफिकेशन कर रहा है कि किस तरह से अब उसको बचना है, वो बचेगा नहीं उसको आज, लेकिन क्योंकि निजाम अभी साहब, सरकार का एक नियम है, सरकार का एक नियम है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती। जी, जी। लेकिन जिस दिन कार्रवाई होगी ये जेल में रहेगा, इसलिए सर, कि वोट जो चोरी चीजें की बात उन्होंने कर लेंगे किया बाद है में। सर, जनता के सामने सब दिख रहा है ना। निजाम साहब, मैं आपसे जी। एक छोटा सा मैंने सवाल पूछा था। छोटा सवाल ये था कि भाई जीएसटी अब जो है उसको रैशनलाइज कर दिया गया है 5% और 18% पे। जो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे सिगरेट हो गई, शराब हो गई, उनके ऊपर तो 40% है, 50% है। मैं कहता हूं 100% कर दो उस पर, कोई 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 सर कोई मैंने कोई आपको समस्या नहीं है। लेकिन सर पूरी बात तो सुन लेना प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप नहीं चाहते कि ये हो, अब वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल और भी हो। कम कर रहे हैं, तो फिर भी आप नाराज हैं। सर कभी नहीं, तो कांग्रेचुलेट करो सरकार को। नाराज का एक कारण है ना, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि टेलमा दवा 70 रुपए की मिलती थी, अब उसके रॉ मटेरियल पर आपने 5% की जगह उसको 28% डाल दिया। यानी जितने रॉ मटेरियल हैं उसके पैसे आप बढ़ा रहे, आप दिखावा कर रहे हैं झूठा मुखौटा लगा के। आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि हम जो है संशोधन सर फार्मा करके सेक्टर में GST को- आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं। वहां पर मैं ये बात 1000 बार बोल चुका हूं कि वहां जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनके जी। ऊपर जो सरकार है हमारी, उनको बहुत अच्छी तरीके से नकेल कसनी पड़ेगी। वो क्या करते हैं सर, जैसे एक जमाने में एक दवाई आती थी राइनोस्टैट। Let me tell you, I have this experience. I used to suffer from rhinitis or sinusitis. Rhinostat was the only medicine which used to work on me. Suddenly I find Rhinostat has been banned. Why? Because it's a combination drug. So ban कर दिया, और उसकी जगह पे आप कुछ और ले लो और ले लो और ले लो, which means I have to spend about 10 times more on some other drug which I don't even know whether will suit me or not. So I'm really telling you, as far as the FDA is concerned, or as far as the Drug and Controller of India is concerned, Bakre Sahab, you really and truly have to look at it with a magnifying glass. I am really telling you, India is supposed to be the pharmacy of the world. Why can't we supply, जो इन्होंने टेल्मा की बात करी, that is an essential medicine for all heart patients. That's an essential medicine. उसको आपने उसको कम कर दिया, उसके रॉ मटेरियल को ऊपर कर दिया, so what happens? Across the counter you have to pay more. That's it. That's what's happening. ऐसे 100 चीज सर, एक दो नहीं 100 चीजें हैं। मैं अभी मेरे पास देखिए, टाइम देखिए, नहीं है। तो बागरे साहब को सर, कुछ सर, एक मिनट, बागरे साहब क्रांति आप हाँ, कहना बोलिए चाहेंगे। बोलिए बोलिए दूसरा 1 मिनट सुनिए, बोलिए। मैं आपको ये बता रहा, सरकार की स्कीम है कि उनको जो है मरीजों को मदद करनी है। ये जी, मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कोर्ट से कर रहे हैं। वो जो ये पैसा दे रहे हैं सर, इनके दलालों के पास चला जा रहा है। क्योंकि अगर किसी का, जैसे आप दवाइयों के पैसे आप बढ़ा रहे हैं ना, आप अपने यहाँ से जो फंड देते हैं वो सारा पैसा इनके सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स को जाकर चला जाता है। जी, ये थैंक यू वेरी मच इनको प्रजापति एक साहब, कमेटी गॉड ब्लेस यू बनाना सर, चाहिए नमस्कार, कि थैंक यू। सरकार उन Thank you, चीजों को thank you. सस्ता करे जो नमस्कार, मरीजों को सर, डायरेक्ट thank you। मिले। ये दलालों के थ्रू पैसा देके क्या करेंगे? जी दलाली बंद हो गया निजाम साहब, आज डायरेक्टली डीबीटी हो रहा है। कोई भी जो अभी कह रहे हैं कि 45,000 करोड़ जो बांटा है उसमें करीबन 4,500 करोड़ बच गया, जो पहले के जमाने में खराब हो जाता, कर्जा कितना हो गया सर? कर्जा देश पे लीक हो जाता था, देश अब में कोई कर्जा लीक कितना नहीं हो होता। गया? अब मोदी साहब आंकड़ा देते सेविंग्स इतना हो गया, इतना हमने सेव नंदियाल जी, किया। मैं पूरे भारत की बात नहीं करता, समीर भाई को अच्छे से पता होगा महाराष्ट्र का कर्जा कितना हो गया और 10 साल में कितना सर, हो गया, पहले भी था, सर। और एक आदमी के ऊपर कितना कर्जा हो गया। अब गिरवी रखने के लिए महाराष्ट्र के पास क्या बचा है सर? बोलिए समीर सिंह, समीर Let's go बाकरे to साहब। Samir Bakre साहब। बस Samir Bakre साहब, could you explain a little bit about the pharma sector, about the medicines, please? देखिए, राजीव जी, प्रदीप जी, कुछ चीजें मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ Please, कि please go ahead. प्रजापति जी ने जो पहले बोला कि 7 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ हो गया, कोई टैक्सेस नहीं बढ़ा है, टैक्सेस कम किए। इकोनॉमी का साइज जब बढ़ता है तब टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, तो ये जी। बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। तो ऐसा कोई 15 लाख करोड़ का कोई किसी की लूट छूट नहीं हुई है, ये हमारे देश की जनता और इकोनॉमी का साइज बढ़ने के कारण कलेक्शन हुआ है। दूसरी बात, निजाम साहब ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई
ब्राह्मण मंडल बनाए। अरे भाई साहब, यहाँ महाराष्ट्र में तो 50 लोगों के जाति के मंडल बने, ओबीसी लेके, धनगर समाज से लेके, मराठा समाज से लेके, हर चीज के बने। तो आप एक पॉइंट आउट करने के लिए जनता को गुमराह मत कीजिए। तीसरी बात ऐसी है राजीव जी, लेट मी से, कि जब भी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट पे लगता है तो उसका आपको पूरा सेट ऑफ मिलता है। यानी जीएसटी अगर आपको इनपुट पे ज्यादा भी लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा टैक्स नहीं लग रहा है, आपका वो टैक्स जमा हो रहा है जो आप अपने सेल्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट द रीजन फॉर इंक्रीजिंग। जब आउटपुट टैक्स ज्यादा होता है तब कीमतें बढ़ती है, इनपुट टैक्स तो आपको सेट ऑफ ही मिल रहा है। तो देर इज नो सच थिंग कि अगर जीएसटी का इनपुट बढ़ा है इसलिए रॉ मटेरियल आउटपुट की कीमतें बढ़ी। अगर आउटपुट पे टैक्स कम है या 0% है या कम से कम है तो उसके अगेंस्ट पूरा सेट ऑफ मिलता है। देर इज अ मैकेनिज्म फॉर क्लेमिंग द जीएसटी रिफंड ऑल्सो, और 90% ऑफ दैट विल बी इमीडिएटली रिएम्बर्स। सो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो जीएसटी में प्रावधान है कि जो जनता के खिलाफ है। और जनता जी, आपने अमेंडमेंट्स की बात की, तो अगर हमने डिजिटली 2017 में इतना बड़ा कानून लाया, तो अगर जनता की सुलभता के लिए अगर और हमको उसमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ Sir, that is no argument. That is ऑलवेज वेलकम। that is no argument. सेंस ऑफ लाइफ अगर हम चेंज कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। सर दैट इज नो आर्ग्यूमेंट, दैट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, दैट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट एट ऑल। क्या है कि आप 100 अमेंडमेंट लाइए, मैं कहता हूं 1000 लाइए, whatever is good for the country, यार, you learn something new every day. that is my point, sir. Yeah, Whatever is good for the country definitely उसमें will कुछ bring. in any और event, आज मैं आपको बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की मतलब हताशा मैं समझ सकता हूं। आज चाहे नेशनलिज्म Sir, पे हो, political बात। चाहे गरीबों की सरकार Sir, पे इतना हो, बढ़िया चाहे discussion किसान चल हो, रहा था, चाहे अब आप उद्यमी political हो, बात कर रहे हैं। चाहे जीएसटी हो, चाहे गरीब, हर चीज का अरे sir, वेलफेयरिज्म हो, sir, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ Sir, नया from 52 चीज they have come लेके up to आने की 101. कोशिश कर रहे हैं। I sympathize Sir, with 52 से Mr. 101 आ रहे हैं, sir। कांग्रेस No, पार्टी बाकरे के साहब, CWC बीजेपी कांग्रेस का CWC मीटिंग पहले बार बिहार में हुआ। हम आपके साथ इंडिपेंडेंस sympathize के करते हैं बाद निजाम साहब, because you don't have anything to say now। समीर भाई, 10 मोदी जी हर स्टेटमेंट चीज कर माननीय चुके हैं प्रधानमंत्री का आप जनता देख के लीजिए। हित में। आप उसके बाद इसलिए आप झूठ के 90 भारत के चुनाव हारे हैं। प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं क्या 90 सर? चुनाव राहुल गांधी जी के पिछले नेतृत्व में आप हारे। 10 स्टेटमेंट आप सिर्फ माननीय वोट चोरी बोल प्रधानमंत्री का आप सकते देख हैं लीजिए। जो कोई सिवाय मतलब झूठ नहीं के है। माननीय आप प्रधानमंत्री बाकी कुछ बोलते हैं जेन क्या? जी का कोई रिवॉल्यूशन चाहते सिवाय हैं झूठ जो सर, लद्दाख में समीर आपकी कोई भाई, पार्टी के नेता ने माननीय किया, तो ये प्रधानमंत्री कोई जी मतलब सिवाय नहीं झूठ रहा। के कुछ बोलते यू हैं शुड क्या? बिलीव इन डेमोक्रेसी। Sir, एक चीज है, निजाम साहब। हमारी जो बहस संस्था मत है उन्होंने करिए। 100 साल काम आप किया है, तब पॉलिटिकल हमको ये बहस दिन मत आज करिए। देखना निजाम पड़ा। साहब। हताशा कांग्रेस की नहीं है, हताशा बीजेपी की है, क्योंकि निजाम उनके साहब लिए एक छोटी सी चीज है, निजाम साहब एक छोटी सी चीज है, समीर बाकरे जी निजाम आप साहब, हमारा आप जरा हमको ध्यान से हर जगह सुने। चुनाव जीत रहे हैं, अरे हम क्यों समीर हताश बाकरे साहब हैं? एक कहाँ सेकंड। जीत रहे हैं? आपने Sir, how किस does it तरह matter? चुनाव जीता पूरा देश देख Sir, रहा है ना? again. आपने बेईमानी से चुनाव जीतने अरे जीता। अगेन मैं आपने जो है अरे सरकारी भैया, लोगों के पहले एक मिनट। निजाम पेमेंट साहब, तक एक नहीं लाइफ की का सर। प्रिंसिपल है, अगर आप प्रॉब्लम बेईमानी से समझेंगे जीतना तो चुनाव आप नहीं प्रॉब्लम है। सॉल्व कर सकते हैं। Sir, आप एक प्रॉब्लम मिनट, को accept gentlemen, नहीं करते gentlemen, कि both of आपको you are very reject कर sensible. रहे हैं, तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे Sir, कभी। समीर और बाकरे साहब, एक मोदी मिनट। ने एक मुलाकात में कहा है कि वोट चोरी का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जनता को सारे उनको बहलाना प्रमाण- है। सर, ये सारे योगेंद्र प्रमाण है। ऑन रिकॉर्ड है। How does it make a difference? आप उनका स्वयं इंटरव्यू सारा देख लीजिए, देश देख वायर रहा अपने है चैनल में और हुआ सारे है। एविडेंस तो ये के साथ कांग्रेस है सर पार्टी समीर का भाई। जो, सारे toolkit है, चोर पकड़े ये जो जाएंगे ecosystem सब। बाकरे साहब और निजाम अगर साहब, आपने नेपाल, आपको श्रीलंका, आपको पाकिस्तान जैसे महापौर एक मिनट, चुनाव gentlemen, जीतना है। gentlemen। इसका ट्रेलर आपको इन्होंने लद्दाख में महापौर दिखाया जो है। है, सर, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोल लूं। डॉक्टर बाबा साहब, अरे यार, मैं कुछ बोल लूं क्या? तो आप चुनाव लड़िए। अरे समीर बाकरे साहब, कीजिए, जनता के अरे पास जाइए, हमें ये शो तो कंडक्ट आपको करने देंगे या नहीं, समझ में सर? आएगा कि जनता क्या सोचती है। सर, हम आपको जितना बोलने देते हैं हमें भी तो बोलने दें कभी कभी, ऐसी बात नहीं है सर, मैं चिल्लाता नहीं हूँ Sir, किसी your पे। voice actually comes after a gap. तो वो Yes, समझ I में know, नहीं I know, आता I know. There's a bit of a gap. There's a bit of a gap of about 0.5 or 1 second, after which you get to hear me. Sir, निजाम साहब, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, बाकी सब ठीक है, आप मोदी जी को क्रिटिसाइज करिए, सब कुछ करिए। सर, आज तक सुनने वाली बात है, आज तक राहुल गांधी जी या उनके जितने एडवाइजर्स हैं, उन्होंने अपना ऑल्टरनेटिव मॉडल पेश नहीं किया। यह कहना बड़ा आसान होता है, मोदी गलत कर रहा है, मोदी गलत कर रहा है, मोदी गलत कर रहा है। अरे आप क्या करने वाले हैं? अगर मान लीजिए आज राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो व्हाट इज योर मॉडल? उसके बारे में भी तो बताइए लोगों को। इलेक्शन बोलिए। ये इलेक्शन के दौरान जब मैनिफेस्टो आता है ना सर, तो अपना जो है पूरा का पूरा मैंने। मॉडल रखते हैं। सर, देखा आप मैंने। पिछले 10 साल में जितने मॉडल्स राहुल गांधी ने तैयार किए, उसी का नाम बदल के माननीय प्रधानमंत्री, इसलिए कह रहा हूं ना
कि देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, और वो बेईमानी तो करते you should हैं। be very happy. सारे मॉडल्स आप बताइए, जितनी चीजें लागू किया है राहुल गांधी ने, जितनी बातें कही थी, वो सारा अभी लागू की लगाया कि नहीं इन्होंने? So, asset नया है कुछ राहुल लाए गांधी क्या? बीजेपी के लिए। आप मेरे को बताइए, एक भी चीज भारत के प्रधानमंत्री ने नया लागू किया क्या? सो दोनों भारतीय है ना, निजामुद्दीन राहुल नहीं, गांधी चलो, जी, भारतीय प्रदीप इसका जी। क्या मतलब? भारतीय होने का मतलब उन्होंने चीट किया हमेशा। कांग्रेस ने जो पॉलिसी सेट की, जब जब राहुल गांधी कोई नई चीज लाते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं उसका नाम बदल के फौरन क्रेडिट लेने पहुंच जाते Wonderful. हैं। So you should thank him. अब वो मॉडल भी आएगा, आप देख Wonderful. लेना। मॉडल हम लागू आपके किया। साथ ही डिबेट पे कल करेंगे, बिहार में लेकिन मॉडल- अभी मॉडल दे देंगे, फिर ये अरे कल- चीटिंग करेंगे। मैं- तो ये जो कर रहे हैं पूरा देश देख रहा मैंने है। कल मॉडल इसमें बनाया ना आपने, कहीं- कल के बिहार के मीटिंग, सीडब्ल्यूसी मीटिंग पहली बार बिहार में किया कांग्रेस ने, सीडब्ल्यूसी ये मीटिंग। ऐसे कोई जरूरी मगर नहीं उसमें है, और भी आरो- जगहों पर हुई है। उसमें चार अगर चीज- सुनिए, अचानक नंबियार जी, आपका मॉडल मैं अगर बोल रहा हूं। माननीय आपने बोला प्रधानमंत्री जी, आरएसएस और बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, संविधान को खत्म कर रहा है। आपने कहा कि जो हगने वाला हग किया मोदी जी और ट्रंप में, जो हग उसको बोलता वो तो देखिए सर, अब मोदी और ट्रंप पे बहुत बात करके फायदा नहीं है। आइसोलेटेड, यानी आपका रेजोल्यूशन सर पास सर किया सर कल ऐसा है CWC कि resolution हमारे है आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो मैंने वो शब्द यूज किया था ना, वो इसीलिए किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बच्चे हैं, वो ट्रंप के चंगुल में फंस गए। ट्रंप में इनको सर, नचा अभी रहा है। सारी दुनिया अभी ये आप बोल और रही बुरा हाल है। देख- अभी सर, अभी चाइना जो हमारी जमीन कब्जा किया है ना, ये और भी अंदर घुसेगा और उसके बाद इन्हीं को मारेगा। आप देखना, क्योंकि आपने ये- गाजा आप गाजा समझ की रहे भी हैं। बात किया। गाजा की जरूरत था क्या आपके रेजोल्यूशन में? गाजा क्या, आज देखिए, गाजा को पूरी लेके दुनिया आप वही जो तुष्टीकरण की राजनीति फिर अपनाने वाले हो? किसने किया? गाजा के तुष्टीकरण की CWC राजनीति resolution। माननीय प्रधानमंत्री ने किया। आपको याद होगा बजाज साहब, जी। आप मेरे ऊपर गर्म हो गए थे जब पहली बार हमास ने अटैक किया था। जी। तो आपने मुझसे यह कहा कि आप गलत बात कर रहे हो। तब मैंने कहा था कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, वो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है। आज उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए दुनिया के 147 150 देश कर रहे हैं ना। ये उसको तुष्टीकरण दे है, रहे हैं, तुष्टीकरण। नहीं, आप But they're not recognized. बिहार में प्रदीप जी एक सेकंड, वोट- प्रदीप जी एक सेकंड, one second, one Yes, second, yes. one second, one second, one second, one second. Nizam साहब, nobody is recognizing Hamas. People are recognizing a मैं Palestinian state. फिलिस्तीन People are को- recognizing a सर, Palestine. सुनिए ना। So there's a difference. सर, फिर- No sir. No पहले one सुनिए has ना, recognized सर, Hamas. देखिए, हमारे यहाँ बहस हुआ था हमास को लेकर, सुनिए ना सर। लेकिन हमने आपसे तब भी कहा था कि फिलिस्तीन के उनकी अपनी संगठन है। सर, लेकिन फिलिस्तीनियों अभी को- अभी इस इशू को लेकर बिहार चुनाव में आप मुसलमान वोट को अपने तरफ खींचने का सर, एक आज पूरा- वो पूरे दुनिया ये में फिर चल वो रहा है। तुष्टीकरण उसी की उसी इशू राजनीति। के लेके माननीय प्रधानमंत्री जी जब योनो में इसकी वोट हो रही थी, वोटिंग में कभी वो बदलते हैं, कभी साथ देते तुष्टीकरण हैं। की राजनीति ये बिहार चुनाव के लिए सर, क्या आरोप बिहार है आप चुनाव पर? का इशू है। बिहार चुनाव में वो तो अपने सर, उन्होंने एक अपनी भी माता- देश ने सुनिए हमास को सर, recognize अभी नहीं बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं नाम्बियार जी, अपनी माता का श्राद्ध कर रहे हैं, अब जा रहे हैं वो बिहार में। ये क्या चुनाव नहीं है? ये नहीं है ड्रामा। अब बाकरे साहब किसी जब पूछे हिंदू आप गाजा के- हिंदू लॉजिक गाजा में का कहीं है resolution क्या? क्यों पास किया? मां के मरने के बाद आप मुंडन नहीं करते हैं, मां के परिवार के लोगों को आप एसपीजी से उनके घरों में लॉक कर देते हैं और आप जो है उनको जाने नहीं देते। Right, so let me- और मां का let us श्राद्ध go to करने बाकरे पटना साहब। जा रहे हैं। तो ये बाकरे साहब से राजनीति पूछ नहीं लेते है हैं। आपकी। तो बाकरे साहब से मां पूछ के लेते नाम हैं। पर आप पुलवामा का वीडियो देखिए, पुलवामा के शहीदों से तो वोट मांगते तुष्टीकरण ठीक हैं। है। अरे शर्म करो प्रधानमंत्री जी, आप तुष्टीकरण- क्या बात करेंगे? तुष्टीकरण- अगर कांग्रेस वहां जाकर एक मीटिंग करती है तो पेट में दर्द हो रहा है गोदी मीडिया So के can we- प्रधानमंत्री can we महोदय talk जी के। to बाकरे और साहब? अपनी माता जी का श्राद्ध करने वहां जा रहे हैं। राइट, सो लेट्स गो क्या टू बाकरे राजनीति है? साहब। तो बाकरे साहब के पास जाते हैं। बाकरे साहब, आप ये बताइए, कांग्रेस has passed a resolution with regard to Gaza. I don't see a resolution with regard to Kashmiri Pandits. I don't see a resolution with regard to Bangladeshi Hindus. बाकरे साहब, would you like to reply on that? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पूरी नींव तुष्टीकरण पे है। ये कांग्रेस पार्टी हमारे देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी। उसके बाद हाँ, आप देखिए, ये सर, ये मत नेता बोलिए। जो है सर, बहुत लंबा हो जाएगा वो discussion। गाजा का बैग लेके घूमती है, लेकिन कभी कश्मीरी पंडित के बारे सर, में ये ना मत उनके बोलिए। मुंह से शब्द निकलता है। ठीक। और आज निजाम साहब जैसे व्यक्ति है, उनके आज पार्टी के जो मन में है वो उनके जबान पे आ गया। वो कहते हैं कि हमास को रिकॉग्नाइज किया। अरे Hamas हमास not टेररिस्ट recognized. संगठन है, Hamas is a It is a terrorist designated टेररिस्ट संगठन। Yes. दूसरी बात ऐसी है, उन्होंने 1700 इजरायली नागरिकों का कत्ल किया है।
तो क्या आप हमास को रिकॉग्नाइज कर रहे देख हैं? लो। यानी इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं है। पैलेस्टाइन और They have इजराइल not का जो mentioned Hamas, मामला sir. है वो उनका, पैलेस्टाइन लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन हम किसी टेररिस्ट संगठन को समर्थन नहीं करते। और अगर कांग्रेस पार्टी हमास को समर्थन करती है कि आई डिप्लोर देम, मैं उसकी haven't, भर्त्सना करता sir, हूं they कि haven't, अगर haven't, कांग्रेस they haven't, पार्टी they have not. हमास को समर्थन कर रही है और They कह have रही है not, कि पूरे 150 लोगों ने हमास को सपोर्ट किया, तो They ये have not, बिल्कुल they have गलत not. बात है। Sir, they have और not. बीजेपी विल ऑलवेज बिलीव इन इक्विटी फॉर ऑल। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति देश के सामने है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम समाज के धर्म के भाई बहन जो है वो भी इनकी राजनीति समझ चुके हैं। मोदी जी, देवेंद्र जी, योगी जी और पूरे देश में अगर हमको मैंडेट मिल रहा है तो सिर्फ कोई हिंदू समाज नहीं दे रहा है, हमको मुस्लिम समाज के भी लोग दे रहे हैं। और इसके कारण इनके पैरों के नीचे की जमीन। और मैं राहुल गांधी जी के बारे में पूछना चाहता हूं कि आज जो आरजेडी के साथ ये है, वो लालू जी को बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस लाए थे मनमोहन सिंह साहब ने, वो राहुल गांधी ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा था। तो किस नहीं पढ़ना चाहिए था, गलती करी। गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने जो गलती करी। ऑर्डिनेंस लाया था वो फाड़ा था। तो क्या वही आरजेडी के साथ खड़े हैं जो कन्विक्टेड है लालू यादव, उनके पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं जो उसके खिलाफ राहुल गांधी Sir, it works both ways. में बात कर रहे Sir, it works both ways. हैं। स्टैंडर्ड जनता के सामने इनकी आप कश्मीर में अभी आप कह रहे थे कश्मीर के ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस खड़ी नहीं हुई। किसकी सरकार थी कश्मीर में? जगमोहन किसका गवर्नर था? मुफ्ती महबूबा उस वक्त आतंकवादियों के साथ थी और ये सरकार बना रहे थे। उसके साथ सरकार में कौन था? किसके साथ सरकार? वो आतंकवादी संगठन आपकी बात कर रहे हैं हमास के इश्यूज को लेकर। आप मुझे बताइए कि आप मुफ्ती महबूबा के साथ तलवे चाट रहे थे आपके प्रधानमंत्री ऊपर। क्यों सरकार बनाने गए आप मुफ्ती महबूबा के साथ? But अरे हमास की बात PDP is not a terrorist 3 organization. आतंकवादी जो वहां चुन कर आए थे वो मुफ्ती महबूबा को सपोर्ट कर रहे थे और आप सरकार बना रहे थे उनके साथ। But बातें PDP is करते हैं not a आप अपने, terrorist आपने क्या organization, sir. किया है पिछले, उसको आप देखो। Is आप ये recognized मत by the बताओ Election कि Commission. कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ कुछ नहीं किया। Right, आप gentlemen, सरकार में thank किसी- you very जगमोहन कौन much. था? It's been जगमोहन a कौन great था? pleasure. मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार बनाने कौन गया? Gentlemen, it's been a great pleasure. Thank you किसने very किया much. सबके साथ? निजाम साहब, शांति 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 शांति। सर अगर ये सर 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 सारा- सर सारा आप तिलमा के बारे में जानते हैं, इसका मतलब ब्लड प्रेशर है आपको। आप नहीं, जरा नहीं, अपना सर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज मत देखिए, कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, Please. ये देखिए आपके पिक्चर में आ रही ना, आप महबूबा की हिस्ट्री देख लीजिए। मैं जानता हूं इनको सर, सर इनके पिताजी को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। Yes, जो कांग्रेस तो के मैं कह सकता हूं कि लालू सर, के जो लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ आप करते नहीं थे। कर सकते। सर ये कांग्रेस सब के चीजें प्रेसिडेंट, कि सर बहुत जम्मू एंड बड़ा कश्मीर आतंकवादी कांग्रेस के होता है, प्रेसिडेंट बना थे। कुछ बुरा नहीं। अरे निजाम साहब, बीजेपी अरे निजाम साहब, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब सालों दर सालों जे.एंड.के कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे और जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खिलाते थे वैसा ब्रेकफास्ट कोई खिला नहीं सकता सर। जी। अकेले मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे जो कांग्रेस का जो ऑफिस था आज भी वही है गुपकार रोड पे। चलिए मेरे साथ, कभी मैं श्रीनगर लेके जाता हूं आपको। एक फेमस डिश होती है श्रीनगर में जिसको कांती बोलते हैं। दीज आर बोनलेस पीसेस ऑफ मटन मेड आउट ऑफ शीप। वो खिलाते थे, चाय पिलाते थे साथ में सुबह सुबह। ऐसा मटन नहीं खाया मैंने कभी जितना मुफ्ती मोहम्मद सैयद के घर में खाया है, और वो कांग्रेस के थे और उन्हीं की बेटी की बात कर रहे हैं आप। सर जाने दीजिए ना अभी। चलिए, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, Thank you so ग्रेट much. प्लेजर टॉकिंग टू द बोथ ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। Well, things tend to get heated towards the end. But in any event, if they don't get heated, you don't have any fun. So, however, that is just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। And from both Pradeep ji and me, आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। और वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। The fastest growing channel of the nation, the fastest growing channel of the nation, Nation Now. फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ द नेशन, नेशन नाउ। आप सब लोगों को नमस्कार। भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.